हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। 22 जून। वैदिक सिद्धांत के अनुसार एक गृहस्थ को देखना चाहिए कि उसके घर में रहने वाली छिपकली अथवा यहाँ तक कि सांप भी भूखा ना रहे, उन्हें भी भोजन मिलना चाहिए। और फिर अन्यों का क्या कहना। प्रोफेसर कोटोफ्स्की के साथ वार्तालाप 22 जून 1971 मॉस्को। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। Everyone must have perfection, but people are not interested. What is the perfection of life? Neither they know what is the position of perfection. The perfection is Haritosanam, to satisfy the Supreme Personality of God. It doesn't matter what you are. If you are Brahman, by your activities, Sattva, Sama, Dhamma, Titikha, by your austerity, knowledge, you satisfy Krishna, Vishnu, the Supreme Krishna and Vishnu the same. Vishnu Tattva. Krishna is the origin of Vishnu Tattva. Aham Sarvasya Prabhava, Krishna says. He is the origin of Vishnu also, Sarvasya, because in the creation, Brahma, Vishnu and Mahesa, the origin of original demigods of this creation. Brahma is the creator, Vishnu is the maintainer, and Maheshwar or Mahadev or Lord Shiva is destroyer. The three deities in charge of three departmental activities. So Krishna says, Aham Sarvasya Prabhava. That means he is the origin of Brahma, he is the origin of Vishnu, he is the origin of Lord Shiva. Aham Sarvasya Matta Sarvam Pravarta. So, therefore here it is said, Haritosanam. If we satisfy Hari, the Supreme Personality of God, he includes everything. Sarvasya Prabhu. You do not require to satisfy separately other demigods. There is no need. The example is given, Jatha tarormula nisechanena tripanti tatskanda bhujopasakha. Just like pouring water in the root of the tree, automatically you water the branches, the twigs, the leaves, the flowers and everything. This is the way. Pranopaharacha jathendriyana. You supply foods to the stomach and automatically the energy will be distributed to other parts of the body. You do not require to supply food to the eyes, to the ear, to the nose. No. Simply supply food to the stomach and the energy will be distributed. Similarly, Sangasiddhi Haritosanam. If you simply satisfy Hari, the Supreme Personality of Godhead, then you satisfy all others. Tasmin tuste jagat tushta. Just like you know the story in Mahabharata that Duryodhana planned, once Duryodhana satisfied Durvasa Muni very nicely, and Durvasa Muni wanted to give him some benediction. Now he takes some benediction, whatever you like. So Duryodhana was very cunning. His only aim was how to cheat the Pandavas. So he said, my dear sir, I shall ask you someday, not now. So all right. So when the Pandavas were in the forest, and Duryodhana's plan was how to tease them, so he approached Durvasa Muni, my dear sir, you wanted to give me some benediction, I have come for it. Yes?
Now you go to the Pandavas with your all disciples, 60,000 disciples, and you go when Draupadi has taken her food. So Durvasa Muni one day, because he wanted to give that benediction, he approached the Pandavas in the forest, and it is the duty of the Kshatriya to receive the Brahmanas. So they have finished their lunch, and Durvasa Muni came. So how they can deny? They are Kshatriyas. Yes, my lord, you can. You are welcome. Just take your bath, and you are making arrangement. What arrangement they will make? In the forest. So they are perplexed. So Krishna, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. Krishna's vow is that he will see always his devotees are protected. So when they are perplexed, Krishna came. Then what is the problem? They explained, this is the problem. Then asked Draupadi that you have already finished, because Draupadi had a benediction that so long she does not take his lunch, any number of men come, she will be able to feed. That was it. But she had finished her lunch. Then Krishna said, just go find out some food stuff, any little in the kitchen. They said, no, everything is finished. There is no food. No, just try to see. Then in one pot, they saw a little shark, a vegetable was stuck up. So they brought it, and Krishna took it immediately. So as soon as Krishna took, all the Durvasa Muni and company, they felt that their belly is filled up. Tasmin tushte jagantushta. So they are feeling ashamed that how we shall go, we cannot take any food. So they fled away from the Ganges. So the process is this, actually. If you can satisfy Krishna, if Krishna says all right, then everything is all right. Bas. This is Krishna consciousness movement. Somehow or other, you satisfy Krishna, Sangsiddhi Haritosanam, then you have all perfection. Very simple method. You try to satisfy Krishna, and your everything satisfied, everything is perfect. Krishna also says that it is not very difficult to satisfy Krishna. Krishna is so kind. He says, Patram puspam phalam toyam jomi bhaktya prajicchit. हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 21। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहाँ पे भगवान इस आत्म तत्व के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि आत्मा तो अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता और न ही कोई उसे मार सकता है, न उसको कोई मार सकता है, न वो किसी के द्वारा मारा जा सकता है। अव्यय है, अविनाशी है, अमर है। अब यहाँ पे भगवान एक सिद्धांत से देखिए ये समझ रहे हैं, अगर नहीं मारा जा सकता तो फिर युद्ध क्यों। इस संसार में हर वस्तु का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। जैसे कि ये युद्ध हो रहा है, अब ये युद्ध हो रहा है भगवान कृष्ण के निर्देश में युद्ध हो रहा है।
अर्जुन युद्ध करने वाला है कृष्ण के निर्देश में, भगवत गीता समझने के बाद। इसीलिए अर्जुन तो किसी को मार नहीं रहा है, क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अब अर्जुन को दंड नहीं लगेगा क्योंकि धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में कृष्ण के जो आदेश का पालन हो रहा है, तो उसमें अर्जुन को दंड नहीं लगेगा शरीर को हानि पहुंचाने के लिए। जैसे किसी को फांसी की सजा दी जाती है, अब उसमें जज का तो दोष नहीं है, ऐसा किसी ने कर्म किया है तभी तो उसको फांसी की सजा दी जा रही है। कई बार संसार में ये तर्क वितर्क होता है कि फांसी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, कि हमें अधिकार है क्या किसी को किसी के शरीर को खत्म करने का, या शरीर और आत्मा को अलग करने का। तो मनुस्मृति में ये बताया गया है कि क्यों फांसी देनी चाहिए। देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर किसी को मारा है तो उसको उसका दंड भुगतना पड़ेगा इस संसार में, नहीं तो फिर अगले जन्म में। हो सकता है इस जन्म में कोई छूट जाए, किसी की मृत्यु करके कोई छूट जाए, लेकिन उसको यमलोक में यमराज द्वारा या यमदूतों द्वारा जो है उसको दंड तो मिलेगा, और कई गुना बढ़ के मिलेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को राजा के द्वारा, या जैसे आज के सिचुएशन में सरकार के द्वारा, अगर उसको फांसी की सजा दी जाती है क्योंकि उसने किसी को मारा है, किसी की मृत्यु की है, तो उसको अगर फांसी की सजा दी जाए तो उसका वो पाप जो है वो कट जाता है। मतलब अगले जन्म में उसको दुख नहीं भुगतना पड़ेगा इसके कारण, नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, यमलोक में भुगतना पड़ेगा। अब कोई कहेगा हम नहीं मानते ये। आप कैसे नहीं मानेंगे ये चीज? इतना सिंपल लॉजिक चल रहा है। हम दुख भुगत रहे हैं संसार में, सुख भी दुख भी, और सबका दुख और सुख अलग अलग है। ये क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ तो इतिहास होगा हमारा ना, कुछ ना कुछ इतिहास है। मतलब पूर्व जन्म में हमारा कुछ और शरीर था जिससे हमने कर्म किए, जिसके कारण सुख और दुख मिल रहा है, तो पुण्य और पाप किए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पिछला शरीर था। अब जब अभी अगर कोई पाप करते तो क्यों उसको अगले शरीर में दुख ना मिलेगा? और ये तो सिंपल है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं और उसको रीपे करने में टाइम लगाते तो इंटरेस्ट बढ़ता है। सिमिलरली अगर हमने कुछ गलत किया है और उसकी सजा नहीं मिली, हम बच गए इस सिस्टम को कहीं लूप होल ढूंढ के, लेकिन प्रकृति के जो नियम हैं वे बड़े कठोर हैं, वे तो नहीं छोड़ने वाले हैं। हिसाब तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो उसका पाप कटेगा कैसे? तो इसीलिए तो मृत्यु सिर्फ मनुष्य की नहीं, हमको पशु हत्या से भी बचना चाहिए, नहीं तो उसका भी हमको दंड भुगतना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि ये भगवान युद्ध करा रहे हैं, इतने लोगों को, लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ये क्या सही है क्या? युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए, दुर्योधन को हटाने के लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों? देखिए, जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो जो मरीज को मारने के लिए नहीं, उसको बचाने के लिए। कई बार सर्जरीज करना पड़ता है, हाथ में, पैर में, शरीर के अलग अलग अंगों पे सर्जरी करना पड़ता है। कई बार कुछ हिस्सा निकालना भी पड़ता है। तो पॉइजनस हो गया है, कैंसर होता है जैसे, तो कैंसर में पूरा हिस्सा निकालना पड़ता है, नहीं तो फैल जाएगा। तो दुर्योधन एक कैंसर था, और भी लोग थे। अब जैसे सर्जरी से डॉक्टर उस व्यक्ति की जान बचा रहा है, तो भगवान ये धर्म युद्ध करा के धर्म की रक्षा तो कर ही रहे हैं। और जो भी, जिनका भी छोटा मोटा जो भी पाप रहा, भगवान ने सबको खत्म किया, उनके पाप को खत्म किया। भगवान कहते हैं अहम त्वम सर्व पापेभ्यो
अब जितने भी लोग वहां पे मृत्यु हुई, सबका उद्धार हुआ। सबको उद्धार हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हुआ। तो ये तो सबका फायदा हुआ ना। ऐसा नहीं कि किसी ने पाप किया था और उसको दंड दिया जा रहा है। नहीं भी किया होगा, पाप पुण्य किया होगा, तो भी भगवान ने उसको उद्धार दिया। तो उद्धार होना जरूरी है। तो इसीलिए जैसे यहां पे उदाहरण दिया जाता है डॉक्टर का, ऐसा लगता है वो सर्जरी कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इस अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया है और वो पॉइजनस हो गया और वो पूरे शरीर में पूरा फैल सकता है, तो डॉक्टर कहता है इसको काटना पड़ेगा। इसको काटने से आपका वाकई शरीर स्वस्थ रहेगा। तो लोग कटवाते हैं, नहीं तो फिर पूरा शरीर में जहर फैल जाएगा। तो भगवान ऐसे ही ये धर्म युद्ध के माध्यम से लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं और समाज का भी कल्याण कर रहे हैं। और आत्मा क्या है? उसका तो शरीर बदल रहा है। भगवान इन सबको अच्छा शरीर दे के किसी को डायरेक्ट वैकुंठ भेज देंगे, किसी को मौका देंगे भक्ति करने का। तो ये जो है आत्मा वही है, शरीर बदल रहा है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। लेकिन इसका अगर कोई ये सोचे कि ठीक है आत्मा अविनाशी है, हमने पहले भी चर्चा किया, तो फिर उसको हम किसी को भी मार सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उस आत्मा को शरीर भगवान द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा। भगवान ने प्रकृति के द्वारा उस आत्मा को, जैसे हमको एक शरीर दिया है, तो इसमें रहने का हमारा अधिकार है। आप जाके किसी का घर नहीं तोड़ सकते। आप बोलेंगे हम किसी का घर तोड़ देंगे, घर तोड़ने से व्यक्ति नहीं मारा जा रहा है, उन सबको बाहर निकाल के घर तोड़ देंगे। लेकिन क्यों घर तोड़ोगे? हाउसिंग बोर्ड ने उनको घर दिया है, उसने मेहनत करके घर बना, आप किसी का घर कैसे तोड़ सकते हो? यह अधिकार हमको नहीं है। यह अधिकार प्रकृति के नियम अनुसार चल रहा है, भगवान के निर्देश में, और वही ये सब कार्य करते हैं। तो आत्मा भले अविनाशी है, लेकिन फिर भी हमें हिंसा नहीं करनी। हिंसा तब सही है, उसका भी अपना एक यूटिलिटी है, वो भी है जरूरत, लेकिन वो जो भगवान है या भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके निर्देश में होना चाहिए। तो फिर वो किसमें किसी को भी पाप या अपराध नहीं लगेगा, उसका किसी को दंड नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा।